Hello and welcome everyone. In this session, today we discuss about development of IDM modules, IDM modules का विकास. The process involves problem identification, def- uh, defining the target disease and the crop, available resources, assessing the resource available to the farm, example, like cost, labor, equipment, method selection. Choosing a com- combination of cultural, biological, and chemical methods that are compatible with each other. Scheduling, create a calendar for the application of each practice. Example, when to treat seeds, when to apply biopesticides, when to scout for disease. Validation, testing the module in the field to ensure it is effective, economical, and practical. Example, an IDM module for tomato or leaf light could include cultural use of certified seeds, crop rotation with non-host crops, biological soil applications of Trichoderma hericianum at the time of planting, chemical foliar spray of a recommended fungicide only when disease severity reaches a certain threshold. यह किसी विशेष फसल में एक विशेष बीमारी के प्रबंधन के लिए स्थान विशिष्ट प्रथाओं के अनुरूप पैकेज बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है. यह आईडीएम मॉड्यूल कोई एक ही आकार का समाधान नहीं है. यह एक अनुकूलित योजना है जो किसी दिए गए कृषि परिदृश्य के लिए सबसे उपयुक्त और प्रभावी नियंत्रण विधियों को जोड़ती है. इस प्रक्रिया में शामिल है समस्या की पहचान, लक्षित बीमारी और फसल को परिभाषित करना, उपलब्ध संसाधन, किसान के पास उपलब्ध संसाधनों का आकलन करना जैसे लागत, श्रम और उपकरण, विधि चयन, सांस्कृतिक, जैविक और रासायनिक विधियों का एक संयोजन चुनना जो एक दूसरे के अनुकूल हो, शेड्यूलिंग, प्रत्येक प्रथा के अनुप्रयोगों के लिए एक कैलेंडर बनाना जैसे बीजों का उपचार कब करना है, जैविक कीटनाशक कब लगाना है, बीमारी की निगरानी कब करना है. मान्यकरण, यह सुनिश्चित करने के लिए मॉड्यूल का खेत में परीक्षण करना कि यह प्रभावी, किफायती और व्यावहारिक है. धान, टमाटर या लिव लाइट के लिए एक आईडीएम मॉड्यूल शामिल कर सकता है. सांस्कृतिक, प्रमाणित बीजों का उपयोग, गैर मेजबान फसलों के साथ फसल चक्र, रोपाई के समय ट्राइकोडर्मा हर्जियानम का मृदा अनुप्रयोग, रासायनिक केवल तब अनुशंसित कवकनाशी का पर्णीय छिड़काव जब बीमारी की गंभीरता एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाए. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आईडीएम, आईडीएम के मूल सिद्धांत. द डेवलपमेंट ऑफ एनी आईडीएम मॉड्यूल is guided by these core principles: understanding the disease cycle, knowing how the pathogen survives, spread, and infects is key to targeting control measures effectively. Ecology-based approach focusing on managing the agroecosystem to make it less favorable for the disease. Economic visibility, ensuring that the cost of management is less than the cost of the crop loss it prevents. Sustainability, prioritizing methods that are environmentally safe and can be used long term without causing harm. Integration, combining multiple methods so that they work together synergetically. किसी भी आईडीएम मॉड्यूल का विकास इन मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है. प्रयोग चक्र को समझना,
यह जानना कि रोगजनक कैसे जीवित रहता है, फैलता है और संक्रमित करता है, नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लक्षित करने की कुंजी है। पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण एग्रो इकोसिस्टम का प्रबंधन करने पर ध्यान केंद्रित करना ताकि यह बीमारी के लिए कम अनुकूल हो। आर्थिक व्यवहार्यता यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन की लागत उस फसल की हानि की लागत से कम है जिसे यह रोकता है। सततता ऐसी विधियों को प्राथमिकता देना जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो और बिना नुकसान पहुंचाए दीर्घकालिक रूप से इस्तेमाल की जा सके। एकीकरण कई विधियों को इस तरह से जोड़ना कि वे सहक्रियात्मक रूप से एक साथ काम करें। बायोलॉजिकल डिजीज मैनेजमेंट जैविक रोग प्रबंधन This component of the IDM module involves using living organisms or their products to suppress the pathogen. Biocontrol agents like Trichoderma, Pseudomonas fluorescens, and Bacillus subtilis, plant extracts, neem-based formulation, garlic extracts, etc. Induce resistance using certain microbes or chemicals to switch on the plant's own defense system. Role in IDM it forms the foundation for sustainability, sustainable management, reducing the reliance on chemicals. It is often used as a preventive measure. आईडीएम मॉड्यूल के इस घटक में रोगजनक को दबाने के लिए जीवित जीवों या उनके उत्पादों का उपयोग शामिल है। मुख्य उपकरण जैव नियंत्रण एजेंट जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस और बैसिलस सबटिलिस, पादपार्क नीम आधारित फॉर्मुलेशन, लहसुन कारक आदि। प्रेरित प्रतिरोध पौधे की अपनी रक्षा प्रणाली को चालू करने के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों या रसायनों का उपयोग करना। आईडीएम में भूमिका यह सतत प्रबंधन की नींव बनाता है जिससे रसायनों पर निर्भरता कम होती है। इसका उपयोग अक्सर एक निवारक उपाय के रूप में किया जाता है। केमिकल डिजीज मैनेजमेंट रासायनिक रोग प्रबंधन This involves the judicious use of pesticides within the IDM module. As a last resort, chemicals are used only when other methods are insufficient or when the disease threat is very high. Need-based application. Spraying is done based on disease and economic they are sold not on a routine calendar basis. Selective use choosing chemicals that are specific to the pathogen, less harmful to beneficial organisms, and have a shorter residual effect. Role in IDM it acts as a fingerprinting, it acts as a fireprinting tool to quickly bring a severe disease outbreak under control, protecting the crop from economic loss. इसमें आईडीएम मॉड्यूल के भीतर कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल है। आईडीएम के मुख्य सिद्धांत अंतिम उपाय के रूप में रसायनों का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब अन्य विधियां अपर्याप्त हों या बीमारी का खतरा बहुत अधिक। आवश्यकता आधारित अनुप्रयोग छिड़काव रोग निगरानी और आर्थिक सीमा स्तरों के आधार पर किया जाता है, न कि नियमित कैलेंडर के आधार पर। चयनात्मक उपयोग ऐसे रसायनों का चयन करना जो रोगजनक के लिए विशिष्ट हो, लाभकारी जीवों के लिए कम हानिकारक हो और जिनका अवशिष्ट प्रभाव कम हो। आईडीएम में भूमिका यह एक फायर फाइटिंग उपकरण के रूप में कार्य करता है ताकि गंभीर बीमारी के प्रकोप को जल्दी से नियंत्रण में लाया जा सके।
जिससे फसल को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। कल्चरल डिजीज मैनेजमेंट, सांस्कृतिक रोग प्रबंधन, दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी आईडीएम मॉड्यूल. इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू अवॉइड और reduce disease. Crop rotation, breaking the disease cycle. Sanitization, removing infected plants debris to reduce the source of inoculum. Adjusting planting time. Sowing dates are set to avoid periods of weather favorable to the disease. Balance fertilization, avoiding excessive nitrogen, which can make plants more succulent and susceptible. Role in IDM. It is the first line of defense. These practices are generally low cost, environmentally safe, and form the base upon which biological and chemical control are added. ये किसी भी आईडीएम मॉड्यूल की रीड है. इसमें बीमारी से बचने या कम करने के लिए कृषि पद्धतियों को संशोधित करना शामिल है. मुख्य प्रथाएं: फसल चक्र, रोग चक्र को तोड़ना, स्वच्छता, रोगाणु के स्रोत को कम करने के लिए संक्रमित पौधों के अवशेषों को हटाना, रोपण का समय समायोजित करना, बुआई की तारीखें बीमारी के अनुकूल मौसम की अवधि से बचने के लिए निर्धारित की जाती है. संतुलित उर्वरीकरण, अत्यधिक नाइट्रोजन से बचना जो पौधों को अधिक रसीला और संवेदनशील बना सकता है. आईडीएम में भूमि का यह रक्षा की पहली पंक्ति है. ये प्रथाएं आमतौर पर कम लागत वाली, पर्यावरण के अनुकूल होती हैं और उस आधार का निर्माण करती हैं जिस पर जैविक और रासायनिक नियंत्रण जोड़े जाते हैं. So thank you everyone to listen me and stay connected. Please support our channel.